Hello everyone. Welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert. So today in this session we are going to learn a topic from class ninth science. So I have one thing to announce that my channel is in now collaboration with Infinity Learn. So now onwards you will get much more, good content here. So keep supporting us. So today, the important topic that I'm going to take up is pollination and fertilization. So, as you all know, before starting with it, let me tell you that what I'm going to cover. So, basically, our key points for this session, we'll be covering pollination and the parts, the miscellaneous things also. But the main focus is to learn about heterostyle and hercogamy. So, let's quickly get started and let's learn. So you know that if I talk about plant, you all have seen a lot of plants around you. And I hope you all are aware that main parts of plant are root, shoot, leaf, flower and fruit. See, flower and fruit are optional. Like few plants they have flower or fruit and few plants they might not have. So here I'm talking about the one which have flowers in them. Basically, which have flowers in them. Okay, so root is the part which goes into the soil. The shoot is the erect part which rises up. Leaves, flower, I hope you all know. Fruit we all enjoy eating. Okay, so now we are going to study about the flowering plants, typically about the flowering plants. See, flowering plants are those which have flowers on them, and we also call them as angiosperms. We also call them as, address them as angiosperms. Okay, so all the plants with flowers they fall in the category of angiosperms. And if I talk about the reproduction, that is the process how they can form a new plant. So let me tell you that like the flowering plants, the part of the plant, the reproductive part of the plant, the reproductive part of the plant here is flower. So sexual reproduction is possible in these plants just because they have flower, because flower is a reproductive part of angiosperms. And I hope you all know about sexual reproduction. That means male gamete, female gamete, fusion and forming zygote, and then that zygote transforms into, undergoes certain changes and then transform into a mature plant. Okay, so here what we are going to study is like how what does the flower has कि उससे हम नए नए तरह का प्लांट पूरा बन सकता है. So उससे पहले we have to know about the parts of flower. So this is a flower. See, in flower what you have, these brightly colored part of plant is called as petals. These green short leaves that you can see are sepals. Okay, and these petals and sepals, I hope it's done. Now this stalk of the flower is called as pedicel. It is called as pedicel. Now what about the parts that are left? So let me tell you that these are like, these ones are, you can write it as male reproductive part. So it is a male part of the plant. Okay, flower. And this is a female part of a flower. Now what they contain उसको पढ़ते हैं. तो अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा दिस इज अ मेल पार्ट एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट. ठीक है, देखो इस पिक्चर में मैंने आपको यही बताया था, फीमेल एंड मेल. So let me tell you, when I'm talking about the male part, so male part is called as anther. What we call it as? We call it as anther. And the female part is called as carpel. It's called as carpel. So on anther what you can see is that it has got filament. इसको आप stamen भी बोल सकते हो, ठीक है? It has got filament. This is filament. और फिलामेंट के ऊपर ये जो लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एंथर लोब. This is anther lobe. If you cut the section from anther lobe, you can see that it has got pollen grains. क्या है इसके अंदर? These are pollen grains, and pollen grains are male gametes. Pollen grains means it is a male gamete. Now looking at this female part, see it has got the cylindrical structure which is style. This one is style. इसके ऊपर ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज स्टिग्मा.
ये जो आप राउंड सा थोड़ा सा ओवल सा देख रहे हो, दिस इज ओवरी, कंप्लीट वन इज ओवरी. ओवरी का वॉल आ गया, आउटर कवरिंग, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स आर फीमेल gamete. That gamete means the cells which will actually participate in fertilization. Got it? So if we talk about stamen, anther is like filament, anther lobe containing male gametes, that is pollen grains. And talking about the female part, ovary, then you have style, over it stigma, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स, दैट इज अ फीमेल गैमीट. अब देखते हैं कि पोलन ग्रेन और ओव्यूल के अंदर क्या है. ठीक है, तो आपने पढ़ा ये फिलामेंट है, ये एंथर लोब है और ये पोलन्स है. अगर हम एक पोलन का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस. इसकी 2 लेयर्स होती है इसके ऊपर, और उन 2 लेयर्स को आप क्या बोलते हो, एक्साइन और इंटाइन. आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन, इट इज़ क्वाइट हॉर्नी, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना कर पाए इसको, जैसे बर्ड्स वगैरह कोई भी इनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो ये थोड़ी हॉर्नी होती है. अंदर वाली लेयर को आप बोलते हो इंटाइन. इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर होते हैं मेल गेमीट्स. क्या होते हैं, मेल गेमीट्स. एंड मेल गेमीट्स बेसिकली कितने रहते हैं, 2 मेल गेमीट्स. और इसके अंदर एक और सेल रहता है विच इज कॉल्ड एज ट्यूब सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल. तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, लेट्स से दिस इज इंटाइन, दिस इज एक्साइन, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये 2 मेल गेमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस. तो एक जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है. 3 सेल मीन्स 2 मेल gamete and 1 tube nucleus, exine, intine and cytoplasm. I hope it's clear. Okay, now let's talk about the ovules. तो अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, ये कितने सारे ओव्यूल्स हैं, तो अगर आप एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, मैं आपको इसको खुद बनाकर बताती हूँ. इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे पहले एक सैक बना लोगे, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज सैक, इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स ऊपर की तरफ होते हैं और 3 सेल्स नीचे की तरफ होते हैं. ओके, ऊपर वाले सेल्स को हम बुला देते हैं एंटीपोडल सेल्स. ओके, और नीचे वाले सेल्स को, ये 2 सेल्स को हम बुलाते हैं सिनर्जिड्स. और ये जो एक ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज एग सेल. इसके बीच में रहते हैं 2 सेल्स ज्वाइंट, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. दिस वन पोलर न्यूक्लियाई. अब इसके ऊपर लेयर बना देते हैं, एक लेयर और फिर एक और लेयर, और इस तरीके से हो गया सिंपल. तो ये जो लेयर्स है ये किस चीज़ की है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट. इंटरनल लेयर इज ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट. अब इस पिक्चर को देखो, आप देखो, ये तो हो गया आपका न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट. ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स ऊपर एंटीपोडल, 2 सेल्स नीचे सिनर्जिड, और ये हो गया एग सेल. एंड दिस इज अ पोलर न्यूक्लियाई. और एक पॉइंट आप देख रहे हो जहाँ पे दोनों लेयर्स एब्सेंट है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये जो स्टॉक है दिस इज फ्यूनिकल. तो इस तरीके से ओव्यूल दिखता है. एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स ऑन टॉप, 3 सेल्स डाउन, मिडल में 2 सेल्स फ्यूज, देन यू हैव न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट. और माइक्रोपाइल जहाँ पे वो दोनों लेयर्स एब्सेंट है. आई होप यू गॉट इट. तो अब क्या होता है, जब ये दोनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, तो क्या होता है, पॉलिनेशन. एंड व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनेशन, इट मीन्स पोलन ग्रेन का एंथर से, जैसे ये आपके पास एंथर है, ठीक है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाना इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाना इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो जो स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर का होना चाहिए, सेम प्लांट के किसी और फ्लावर का होना चाहिए, या किसी और प्लांट के फ्लावर का होना चाहिए. तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप. तो इसी बेसिस पे हम पॉलिनेशन को 2 तरह की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन वो रहता है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, आई शो यू अ डायग्राम, जिसमें जो पोलन ग्रेन्स है या तो वो सेम ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं, जो कि आप ए पार्ट में देख रहे हो, या फिर वो ए पार्ट के एंथर बी पार्ट के स्टिग्मा में जा रहे हैं. मतलब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स हो गए, अगर एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से उस पर जा रहा है तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गई. अगर एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर्स है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर्स है लेकिन इधर से इधर जा रहा है, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट सेम है. So that means transfer of pollen from anther to the stigma of the same flower, या फिर
स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ऐसा पॉसिबल होगा उन प्लांट्स के अंदर जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर्स में दोनों सेक्सेस, मतलब प्लांट्स में दोनों तरह के मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, या आप कह दो कि उनका एक ही जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल फीमेल दोनों है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। अब जो ये एंथर जाता, पोलन ग्रेन्स जाते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। और वो एजेंसीज इंसेक्ट हो सकते हैं, वो विंड हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो बर्ड्स हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल एजेंसीज जो कि पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाते हैं, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन है चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन है। वी नीड एजेंसीज, अपने आप नहीं जा सकते बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर नॉट मोटाइल, ओके। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसके अंदर ये कंडीशन है कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स है वो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो। ये नहीं कि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, बट उन पार्ट्स का मेच्योरिटी टाइम अलग है। अगर उनका मेच्योरिटी टाइम अलग है तो ऑब्वियसली वो मतलब उनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें से कोई एक मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। तो उनका मेच्योरिटी टाइम एक होना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज सेल्फ और क्रॉस। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ये सी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन बता रहा है। मतलब एंथर एक प्लांट के फ्लावर का है और स्टिग्मा एक प्लांट के फ्लावर का है, तो दूसरे प्लांट पे जा रहा है, बट वो प्लांट्स दोनों सेम स्पीशीज के हैं, वो प्लांट्स दोनों सेम स्पीशीज के हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब जो नेचर है, नेचर फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को, नेचर फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। कुछ फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, या ज़्यादा मतलब कि इसीलिए ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है। सो वन ऑफ इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि वो जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो वो मेल है या वो फीमेल है, तो उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन होना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब उनका मेच्योरिटी टाइम अलग है, चाहे अगर वो बाइसेक्सुअल भी है, हर्मोफ्रोडाइट भी है, हर्मोफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल वन इन द सेम थिंग, बट उनका मेच्योरिटी टाइम अलग है। अब मेच्योरिटी टाइम ही अगर अलग है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, और इस कंडीशन को बोलते हो डाइकोगैमी। सेल्फ स्टर्लिटी। सेल्फ स्टर्लिटी का मतलब एक जो फ्लावर है उसमें चाहे दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, बट उसका जो पोलन ग्रेन है वो अपने ही फ्लावर के ओव्यूल के साथ फ्यूज नहीं कर पाता। दिस इज सेल्फ स्टर्लिटी। नेक्स्ट वी हैव हेरकोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली, विच इज द मेन टॉपिक जो हमने पढ़ना है यहाँ पे, एंड वेरी वेरी इजी। हेरकोगैमी में क्या होता है कि जो एंथर है जो आपका, वो स्टिग्मा मतलब आपका जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा। क्यों? वहां पे कुछ मैकेनिकल बैरियर्स है, वहां पे क्या है, कुछ मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल बैरियर्स है। जैसे आप ये देखो, ये इसका एंथर हो गया, पोलन ग्रेन ने यहां से स्टिग्मा अंदर है, कैसे जाएगा, ये देखो ये बैरियर्स है, राइट। तो जब स्ट्रक्चरल या कोई ये मैकेनिकल बैरियर्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन को हेरकोगैमी कहते हो आप। मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कैसे जाएगा पोलन ग्रेन वहां? फॉर एग्जाम्पल कई प्लांट्स में देखा जाता है कि स्टिग्मा के ऊपर एक हुड आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कवरिंग आ जाती है, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेरकोगैमी। सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हेरकोगैमी, ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एंड द स्ट्रक्चरल बैरियर्स दैट द फ्लावर हैज, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं जा सकते, जबकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, बट स्टिल दे कैन नॉट सेल्फ पॉलिनेट। दूसरा कंडीशन है हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या है, एक ही फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल है फ्लावर, उसके अंदर एंथर भी है और उसके अंदर स्टिग्मा भी है, मतलब दोनों मेल फीमेल पार्ट है, बट इशू कहाँ है, इशू है कि दे ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स, दे ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स। यहाँ देखो स्टिग्मा कितना लो है और एंथर कितना हाइट में बड़ा है, और यहाँ देखो एंथर इज स्मॉलर एंड स्टिग्मा काफी लेंथ हाइट पे है, तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ड्यू टू यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टर्लिटी, हेट्रोस्टाइली एंड हेरकोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवर्ड। सो आई होप यू गॉट इट कि हमारा ये जो हमने पहले किया
हेरकोगैमी और ये हमारा हेट्रोस्टाइली में क्या डिफरेंस है, और क्यों सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते भी शो नहीं कर पाते। अब चाहे चलो पॉलिनेशन हो गई, चाहे सेल्फ हो गई, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, बट पोस्ट पॉलिनेशन में होता क्या है, अगर किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, उसमें पोलन ट्यूब डिवेल्प होगी, पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी तो मेल एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के बाद जो मेल गेमीट है वो एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। अगर जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए तभी पोलन ग्रेन का जो दूसरा मेल गेमीट था, 2 मेल गेमीट पढ़े थे ना हमने, दूसरा जो मेल गेमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई, मतलब जो आपके एम्ब्रियो सैक में बीच का सेल था उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम है जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, और धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन लेकर वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बन जाएगा, सीड। और सीड आपको पता है होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट। अगर आप सीड को इस तरीके से सॉइल में सो करोगे, उसको सारा फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, फाइनली इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीडलिंग एंड ग्रेजुअली इट विल डेवलप इनटू अ मैच्योर प्लांट। तो इस तरीके से बच्चों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हमारा angiosperms. I hope you have understood the condition of heterostyle in heterogamy also, and pollination का भी आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया है। So with this we have come to an end of this session. I hope you understood the concept well. So if you like the video, hit the like button, share the video more and more with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed my channel, just subscribe it right now, because this is the channel where you are going to get the quality content. So thank you, bye bye, take care, have a nice day.